management improvement, और उसके लिए we were very fortunate कि we had to really we had a lot of support from our leadership. Of course day to day काम तो हम लोग कर रहे थे, but very strong commitment to transform this economy was the leadership's message to us. आपको पता है कि we work together, not only the civil government but also with the SIFC, and that has been the source of the strength, and it has given us the courage to do what we have done up till now. सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं जो we inherited was the issue related to the exchange rate. आपको पता होगा कि it had almost hit over 230 plus. So there was a joint effort. 303. नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है. You're sorry. You're right. 300. I was going the other way around. So that was quite a shock to the economy. हर कोई आता था कहता था कि आप लोग क्या कर रहे हैं. देखिए we were obligated to make sure कि we don't intervene in the market, but all the investigations pointed to the huge amount of currency smuggling alongside and cross-border that was destabilizing our currency. So a joint action was launched, and Alhamdulillah today, I was just checking the exchange rate for yesterday. It had reached to 279.48 relative to the 300 that you rightly pointed out, and हम लोगों ने narrow किया है spread between the open market and the official rate. तो उसकी वजह से stabilization हो गई है. There's a lot of confidence, and clearly it has helped not only restore the confidence but brought down the cost of doing business in these last few months. आपको पता है one of the most important elements in all this was also the trade deficit की reduction, which of course is also a collective wisdom of few entities together. Trade deficit now is 30% on a year-on-year, reached about 1.9 billion, which is less than 2.7 billion जो corresponding period of last year. इसी तरह, although we had a rocky start on the exports, but the exports have grown 27% to 2.8 billion, और ये मैं आपको बता सकती हूँ कि काफ़ी interface रहा है with the industrialists and also with the external with different trading partners of ours, और काफ़ी ऐसे काम किए गए हैं जिससे हमारी export potential and export market इंशाल्लाह बढ़ेगी from what we have made an effort to achieve. Now also आपने सुना होगा Pakistan Stock Exchange, and one of my colleagues is sitting here from PSX. I think from a very low we were able to, or it was only the good sentiments that helped us take the Pakistan Stock Exchange Index to over 63,000 plus. Now, of course, today it's 62,393 index. I have to say that there has been reform in virtually every segment of the economy, and I'd like to share that before I go into what we call in our corridors the most difficult and most penetrating, but number one problem is domestic resource mobilization in this country. So I'll touch that at the end, but let me share with you some of the achievements of the finance division that
I represent more the Ministry of Finance. Caretaker government, as you know, as I mentioned, took proactive measures. Economy, alhamdulillah, is stabilized. Market confidence, as indicated by the PSX and other indicators, is decent. Domestic and global challenges were enormous. As you know, the global commodity prices were very high when we came in. We also had been hit by the floods, so we had to manage the expenditures and implementation of that without tightening the purse at that time. And I can go on and on in terms of the fiscal challenges that we faced. Now, obviously, we did a lot of work. उसकी वजह से जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी थी कि IMF की जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, जो was negotiated by the previous government, उसको हमने बग़ैर किसी नॉइस के उसको डिलीवर किया है. And then we were able to bring in 700 million. But this was, of course, in January 2024. We were hoping it will come earlier, but उनके processes and procedures की वजह से थोड़ी देर हो गई इसमें. I can tell you that we also, because this was getting delayed, we have worked incredibly hard कि हम World Bank, Asian Development Bank, Asia Infrastructure Bank, उनके जितने भी quick dispersing assistance थे उनको हमने fast track किया. We made sure that we had adequate representation on the board of these multilaterals to be able to get the release in time. नहीं ये आप बाहर जाके बात. So we we got, fortunately, because of that work, थोड़ा सा IMF delay भी हुआ, तो we got 1.6 billion in December itself. And if you had been in Ministry of Finance, you would have appreciated कि कितना मुश्किल था, क्योंकि हमने उसको de-link करवा दिया IMF के प्रोग्राम से, जो कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में. The government also successfully curtailed the fiscal deficit at 1.3% of GDP during July-November 2024 in the presence of significant rise in markup expenditures. और markup का तो आपको पता है, it hits you and it hits us. ये interest rate जो high हैं, ये actually macroeconomic management में help करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इसने government कि जो डेट है, डोमेस्टिक डेट को भी बहुत इंक्रीज़ कर दिया. न सिर्फ आपकी बिजनेसेस अफेक्ट हो रही हैं, बट इट्स आल्सो इम्पैक्टिंग द डेट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अ मार्जिनल बेसिस. इस वक्त जो हम बोरो कर रहे हैं, वो बेसिकली बोरो कर रहे हैं टू पे आर लाइबिलिटीज़. इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन द रियल डेट इज़ लिमिटेड, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट. On external front, हमारा current account deficit during July-December fiscal year 2024 has been narrowed down by 71.1% to 831 million, against a deficit of 3.6 billion during the same period last year. This improvement is attributed, of course, to the 35.2% decline in trade deficit. इसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ काफ़ी हुई है. आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, और क्योंकि आपको LCs खोलने में मुश्किल आ रही थी, बट हमने रिक्वेस्ट की थी स्टेट बैंक को टू रिलैक्स द ओपनिंग अप ऑफ द LCs. ऑफ कोर्स स्टेट बैंक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, एंड दे रियली हैव टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. हम लेकर आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बट डे टू डे मैनेजमेंट वो करते हैं, तो हमारी उनसे काफ़ी क्लोजली बातचीत होती है. आपको एक खबर पता तो चल गई होगी, बट लेट मी मेंशन के 2016 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट अप्रूव हुआ था,
और इसका बिल 2022 में इनैक्ट हो गया था इन अक्टूबर 2022. The bank was formally launched. Its operations started on December 21, 2023. It was my first priority. हम इसको पहले महीने में कर लेते, लेकिन we were not allowed to appoint the board members under the caretaker government, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अभी हमें दिक्कतें आ रही हैं to improve the corporate governance of this country. We were able to release to them rupees 3.87 billion by the finance division to Exim Bank. और आपको शायद पता हो कि ये जो एक्सिम बैंक है, इसको हमने एक्सपोर्ट फाइनेंस के ऑपरेशंस की भी जिम्मेदारी डाली है. सो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफ़र ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, बट ये फेज्ड हुई हैं ओवर द पीरियड, ये और भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी. Now, this bank will go a long way in catalyzing the growth and diversification of countries' exports, and underlying it will help the diversification of the industry. एक और चीज़ जो हमने की है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी लिमिटेड को लॉन्च किया है very recently. This has been achieved through the grant capital of approximately 6 billion provided by United Kingdom FCDO. ये कंपनी guarantees provide करेगी for the SMEs largely, and it will be able to leverage the additional capital of a substantive amount close to about 50 billion Pak rupees. So आप इसकी leveraging capability देखें, 6 billion की इन्वेस्टमेंट से हम इसको 50 बिलियन की लेवरेजिंग करेंगे टू मीट द डिमांड्स ऑफ द SMEs. ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, इसके कस्टोडियंस आर फाइनेंस डिवीजन. दिस विल बी द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड क्रेडिट गारंटी कंपनी फॉर SMEs. आपको पता होगा कि देयर इज़ अनदर नेशनल क्रेडिट एनहांसमेंट मैकेनिज्म इंफ्राजामिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और इन दोनों के लिए आई एम थैंकफुल टू ए कंपनी कॉल करंदाज जो इस्लामाबाद बेस्ड है, बिकॉज उन्होंने इसको ऑपरेशनलाइज करने में और फाइनेंसिंग और ऑपरेशनलाइज करने में, तो ये कुछ इनोवेटिव मैकेनिज़म्स हैं. ये नॉन बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये टिपिकल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, बट ये बैंक्स को इनकरेज करेंगी कि वो इन अंडर स्टाफ्ड एंड अंडर सर्विस सेक्टर्स को प्रोवाइड करें. और मैं आपको बताऊं, पूरे एशिया में इस किस्म की एंटिटीज़ हैं. सिर्फ ये है कि हमने कभी हुकूमत के बाहर निकल के नहीं देखा कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. हम आप सबको ये इनवाइट करते हैं कि आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस भूल जाएं गवर्नमेंट की सब्सिडीज़. दोज आर द टाइम्स ऑफ द पास्ट. जो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज सब्सिडीज़ के बेसिस पे चली हैं वो चल नहीं पाएंगी. उनको अपने खुद टांगों पे खड़ा होना पड़ेगा, जिसको कहते हैं बैसाखियों पे चलना, रन करना मुश्किल होता है. आप स्लोली तो चलते हैं, लेकिन कभी कोलैप्स भी हो जाते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आप सबको देना चाहती हूँ. ये मेरा अपना तजुर्बा है पूरी दुनिया में काम करके कि जिस कंट्रीज़ ने सब्सिडीज़ दी है उनमें डिस्टॉर्शंस हुए, उसमें वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हुए, और चाहे वो टैक्स एक्सपेंडिचर हो, टैक्स प्रिविलेजेस हो, ये सब नहीं हेल्प करते. हमने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट बनाया है इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. उसको मैं खुद नहीं देखती, बट इट इज़ रियली बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टेट ओन एंटरप्राइज एक्ट ऑफ 2023, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक इंडिपेंडेंट ऑफिस में बना है. इन्होंने अभी पूरे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को कोलेट किया है, और
बेसिकली ये दिस इज़ कवरिंग द पीरियड ऑफ 2019 to 2022। इसकी क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है व्हाट इज़ द कलेक्टिव लॉसेस ऑफ द स्टेट ओन कंपनीज। मैं कहती हूँ बिटवीन द सब्सिडीज़, किसी किस्म की भी सब्सिडीज़ और स्टेट ओन कंपनीज, इफ़ आई हैड द चॉइस वी वुड प्राइवेटाइज एवरीथिंग, ताकि हुकूमत अपना पैसा एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे लगाए ताकि इस मुल्क की तरक्की हो। तो दैट्स द विजन विथ विच I have been leading, I'm trying to lead the strategy part of this government. Ministry of Finance is the heart and soul of all governments, and इसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की ज़िम्मेदारी न सिर्फ फाइनेंस डिवीज़न, रेवेन्यू और इकोनॉमिक अफेयर्स की ज़िम्मेदारी है, बट ऑल द इंटर गवर्नमेंटल कमिटीज़, चाहे वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, वो सारी प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट करते हैं, एक्निक की भी डेलीगेट करते हैं टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमने इतने अच्छे काम किए हैं, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, अपनी हुकूमत की तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह स्पीड से ईसीसी में हमने समरीज लेके जल्दी जल्दी अप्रूवल्स किए हैं। इसमें हमने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है बाय द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन एसओई। सो एक तो कैबिनेट की बहुत सारी कमेटीज़ हैं, एक कमेटी स्टेट ओन ओनरशिप की है और एक कमेटी आपको पता है प्राइवेटाइजेशन की है, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स के लिए भी है। और इस एसओई ओनरशिप में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि जो एसओईज़ हैं उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हाई क्वालिटी की हो, तो इस पे काफ़ी काम हुआ है। जिस तरह पहले मैंने कहा कि पहली हमारी प्रायोरिटी थी टू मैनेज द एक्सचेंज रेट। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम आपको बताएं कि ये नहीं हो सकता था जब तक कि क्रैक डाउन ना होता ऑफ दोज हु हैव बीन प्लेइंग विद द करेंसी ऑफ पाकिस्तान। तो आपको ख़ुद पता है क्या बुरे हालात थे हमारे एक्सचेंज रेट के, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स इन अ गुड शेप। आई मीन आई कैन गो ऑन, बट एक रीसेंट इनिशिएटिव जो मैंने उसका MOU साइन किया था सितंबर अक्टूबर के दौरान इज़ द डिजिटल स्टैक। ये सारी फ्रंटियर की चीज़ें हम लेकर आए, ये पुराने तर्ज से हम नहीं चल रहे इस हुकूमत में, और डिजिटल स्टैक में जो हम काम कर रहे हैं उससे डिजिटाइजेशन विल ग्रो फिनोमिनली। इसकी लॉन्चिंग भी वेरी रिसेंटली हुई थी, एंड वन कैन गो इनटू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट इसमें बेसिकली हमें बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने हमारे साथ MOU साइन किया था फॉर डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, और MOU में उसके स्कोप में था कि वी विल एनविजन एंड वी विल डिज़ाइन पाक डिजिटल स्टैक। दैट स्टैक इज कलेक्शन ऑफ databases and communication protocols which enable these databases to communicate and leverage information for bringing ease and convenience to the lives of common man. Nadra, digital ID and RAST from the banking system, जिसको micro payment gateway system कहते हैं, which has taken over वो real gross payment settlement system जिसमें मुश्किलात होती थी, अब ये smaller customers के लिए micro payment gateway system, ये सारे काम सिर्फ एक एजेंसी ने करवाए हैं, करंदाज ने। एक स्टेट बैंक में हो रहा है, एक अक्रॉस द कंट्री होगा। ये फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं, नादरा का डिजिटल ID एंड रास्त जो स्टेट बैंक ऑपरेट अप करता है, दे आर द फाउंडेशनल ब्लॉक्स ऑफ द स्टैक। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में ये ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो गया है। इट इंटीग्रेट्स रास्त, द स्टेट बैंक पाकिस्तान पेमेंट स्विच with a new initiative जो अभी स्टार्ट हुआ है। It is called BUNA, BUNA. It is a GCC payment switch
दिस वॉज अनथिंकेबल। और ये जो GCC पेमेंट स्विच है, इट विल लिंक all our payments from the GCC countries in a minute, and it will help us bring all the informal remittances through formal channels at a reduced cost. ये जो बीच में informal players हैं जो play करते हैं, they will be out of business hopefully, unless they find a new mechanism to do so. And enhancing RAST adoption for wider range of use cases. Inshallah, FBR will also be hooked up through this mechanism. तीसरी एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि गवर्नमेंट पहले हमेशा रिलाई करती थी ऑन डोमेस्टिक डेट, लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक डेट सिक्योरिटी. Resultantly, average time of maturity of the domestic debt has, not long term, but domestic debt securities की maturity was very uncomfortable. अब हमने इसकी maturity को extend किया है. उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो हमारे interest rates हैं उस पर हमें नुकसान पड़ रहा था गवर्नमेंट को बोरिंग में. तो एक चीज़ जो मैं जब गवर्नर थी स्टेट बैंक की, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखती थी, बट जाहिर है मैं ना करा सकी. अब आज फॉर्चुनेटली थोड़े पीरियड के लिए जो मैं थी वो थी, हमने अमेंडमेंट्स कराई हैं ट्रेशरी बिल के रूल्स में ऑफ 1998 और इजारा सुकूक के रूल्स में 2008 के. दीज अमेंडमेंट्स नाउ इंटर एलिया अलाउ गवर्नमेंट टू फॉलो मल्टीपल मैकेनिज़म्स. हम बैंक से भी बोरो कर सकते हैं, हम PSX पे सुकूक इश्यूज़ कर रहे हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे, एवरीबडी सेड कि यू विल फेल इन दिस एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई हैड पायनियर्ड दिस एंड टोल्ड देम. बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ द SECP who was standing hand by my side and our debt department and PSX, we were able to launch the first Ijara Sukuk on the day the Prime Minister was visiting PSX and giving the awards to our leading market cap companies, जिसकी वजह से ये PSX चलता है. Very proud moment for all of us who have been affiliated with the PSX. Now, domestic Sukuk program has been shifted completely from State Bank of Pakistan to PSX, which has brought a new life to the Pakistan Stock Exchange. It will facilitate the retail as well as non-banking investors to participate in the auction process directly. ये कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में. अब इसकी वजह से क्या हुआ? The cost of our debt came down. आप बता दें, आप तो वहाँ थे जब ये हुआ है. He is a board member of the Pakistan Stock Exchange who can testify that this was the most historic moment, not only for Pakistan, for government of Pakistan, but for PSX. We were able to reduce the cost on the margin of that 30 billion जो पहला टेस्ट हुआ था by almost I think 5% हो गया था. पहले 3% हुआ, उसके बाद 14 पे आ गया. अब आप ये देखें कि इस ज़माने में who can beat the policy rate? हमने बीट कर लिया ना पॉलिसी रेट को. तो आप लोग PSX के स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उठाएं. यू रेज योर डेट फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. आपको कौन रोकता है इससे? आप छोड़ दें बैंक्स को. बैंक्स विल ब्रिंग डाउन देयर रेट्स वंस उनका डिमांड प्रेशर रिड्यूस होगा. ये बात नहीं है कि बैंक्स ने काम नहीं किया. बैंक्स जब से प्राइवेटाइज हुए उन्होंने बहुत खिदमत की है इस मुल्क की और बहुत सर्विस की है आप लोगों को. लेकिन प्रेशर बैंकिंग सिस्टम पे फॉर प्रोवाइडिंग द डेट टू यू ऑल एंड एक्विटी, और हमारी एक्विटी मार्केट्स तो डेवलप ही नहीं हुई हैं पाकिस्तान में. तो मेरा आपको मशवरा होगा कि आप सब अब PSX में जाएं, और अगर आपको IPO में कोई तकलीफ़ होती है
चाहे मैं हूँ स्टॉक एक्सचेंज में ना हूँ, चाहे मैं गवर्नमेंट में हूँ ना हूँ, आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको वो काम करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी रिलेशनशिप्स भी बनाए हैं यहाँ पे. आई अर्न्ड अ लिटिल रिस्पेक्ट, पीपल अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ द स्टॉक मार्केट. और ये स्टॉक मार्केट स्टैग्नेंट थी फॉर ऑलमोस्ट फ्यू ईयर्स. इसको एक नई ज़िंदगी मिल गई है, बट इसकी सस्टेनेबिलिटी आप लोगों के हाथ में है.